Namaste, Guruji. Namaste. Namaste. So we have some questions about Ganapati ji today. So Yeah. who is Ganapati ji? Because we know him as the son of Ma Parvati and Lord Shiva, and he's the Ganadhyaksh. Beyond that, who is Ganapati? Okay. But the context you are asking about Lord Ganapati or Vigneshwara, whatever name we call him, he's in other sense, in spirituality wisdom, we call him as Adi Narayan, Swayambhu Narayan, Lord of who can remove obstacles from the life. A Lord who gives us Riddhi, Siddhi, Shubhalabh and Anandamanda, who gives us prosperity, who gives us knowledge. He is, uh, he is the Devata of knowledge. He is Adi Narayana, Swayambhu, Mahaganapati. Ganapati, Mahaganapati. Okay. So what type of energy is associated with him, and how can we connect to that energy? What is the most efficient way to connect to Lord Ganapati? It's not only Lord Ganapati, it applies to everyone. When you want to connect to the higher selves or higher realms of devatas or Lord or Lordships, we need to be the first character is we need to be very humble. We need to surrender. We need to be very humble. We shouldn't carry our ego. I am something. And what does Ganapati do? In simple way, if we associate Lord Ganesha with our body structure, we have two brains, right side and left side. We can call it male and female aspect, and in spiritual wisdom, we can connect it to the two wives of Lord Ganapati, Riddhi and Siddhi. And Ganapati resides in our Mooladhara chakra, the root chakra, where our yatra of attaining Siddhatva, attaining Guru Tattva, attaining Lordship, attaining the liberty and enjoying enlightenment start the root chakra. हमारा मन अगर अच्छा होगा तो हमारी बुद्धि अच्छी होगी और हमारी बुद्धि में कौन है रिद्धि है सिद्धि है अगर बुद्धि अच्छी होगी तो उसका परिणाम क्या होगा रिद्धि मिलेगी सिद्धि मिलेगी the prosperity and prospect of life will come to you in the form of riddhi and siddhi and उसको और डिटेल में एनालाइज करते हैं तो रिद्धि और सिद्धि जब हमारी बुद्धि अच्छे तरीके से काम करने लगेगी तो उसका परिणाम क्या मिलेगा हमको आशीर्वाद के रूप में हमको जीवन में शुभता आएगी जीवन में शुभता आने से लाभ ही लाभ हो द नेक्स्ट पार्ट after Riddhi and Siddhi which comes into effect in our life as the blessings of Lord Ganesha is Shubha and Labha, the two sons of Lord Ganapati. जीवन में शुभता होगी तो ही लाभ होगा Right. अशुभता रहेगी तो वो भी लाभ देगा लेकिन वो अशुभता का लाभ देगा तो जीवन में सब कुछ अशुभ ही अशुभ होने लग जाएगा आपकी दिमाग आपका एनर्जी को पूरी तरह से खा जाएगा गणपति वो ऑब्स्टिकल रिमूवर की जगह ऑब्स्टिकल क्रिएटर बन जाएगा क्योंकि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और जैसे ही बुद्धि भ्रष्ट होगी तो उसका परिणाम क्या होगा एंड रिजल्ट क्या आएगा आपको शुभता आएगी जीवन में नहीं आएगी लाभ आएगा नहीं आएगा आप सारे उल्टे काम करने लग जाओगे क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो गई आप घूमते चले जाओगे सीधे जाने का उल्टा घूमेंगे उल्टे उल्टे काम करने लग जाओगे तो जीवन में उसका आगे का परिणाम क्या होगा अगर अच्छा शुभ लाभ हुआ जीवन में तो उसका परिणाम क्या आएगा आनंद और मंगल जो उनके पौत्र है ग्रैंडसन्स ऑफ लॉर्ड गणेशा शुभ लाभ होगा तो जीवन में आनंद आएगा शुभ होगा तो आनंद आएगा लाभ होगा तो मंगल ही मंगल आनंद यानी जीवन में उत्साह आनंद ही आनंद सच्चिद आनंद एक वर्ल्डली आनंद और एक जीवन का आनंद दोनों में बहुत डिफरेंस है और दोनों ही मिलेंगे
और यही अगर आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, रिद्धि सिद्धि बिगड़ गई, यानी गणपति ऑब्स्टकल रिमूवर की जगह ऑब्स्टकल हार्डर बन गया, तो आप वो अपनी पत्नियों के द्वारा आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे। आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी तो उसका एंड रिजल्ट क्या आएगा? उसका एंड रिजल्ट ये आएगा कि आपका परिणाम अशुभता में परिवर्तित हो जाएगा, लाभ जाकर नुकसान हो जाएगा, फिर वो आनंद और मंगल आपके जीवन से गायब हो जाए। तो इसका व्हाट इज परिष्कार क्या है? इसका परिष्कार है सबसे पहले समर्पण। तो सबसे पहली चीज है समर्पण, प्यार से समर्पण करना, अपने ईगो को बाजू रख देना। So first principle of attaining that enlightenment in the form of Lord Ganesha and his family, we have to surrender our ego. Just surrender. I forgive my ego. I am something. I bow down to your lotus feet, O Lord Ganesha. Please remove the obstacles of my life, my family, my jivana, my sadhana, my divyata. Just I bow down to your lotus feet and I pray you, please get rid of the obstacles of my life. And he'll take care of all everything in the life. तो पहली सीढ़ी, पहली शर्त यही है कि आप समर्पण भाव में आ जाएं, अपने अहंकार को तिरोहित कर दें और सिर्फ एक अनन्य शरणागति, गुरु कृपा, गुरु की शरण जब आपको मिल जाएगी तो आपके जीवन में दिव्यता आएगी। जैसे ही दिव्यता आएगी, आपका दिमाग सही दिशा में चलने लगेगा, तब आपके जीवन में वो महागणपति जागृत हो जाएगा। जैसे महागणपति जागृत होगा तो आपके जीवन में रिद्धियां ही रिद्धि और सिद्धि दोनों आ जाएगी। रिद्धि सिद्धि आ गई तो आपको परिणाम क्या मिलेगा? शुभ और लाभ, वो दोनों आ जाएंगे तो जीवन आपका परिवार आराम से जी पाएगा। Ganpati ji is usually associated with showering his grace on families, family matters, worldly matters, removing obstacles. So how does a spiritual sadhak with pure spiritual aspirations, without any worldly thoughts, how do we reconcile that? We are living in a world where worldly things matters a lot. Yes or no? We can't escape. Strong belief he removes the obstacles of any kind of anything, whether it's of worldly benefits or your spiritual path. Ganapati is must. He is your foundation. He is your base. Where Lord Ganesha resides in our body, the first chakra, the base chakra. And in that foundation, in that Mooladhara chakra, Lord Ganesha is there. The red color, the energy color. The red color is associated normally with energy, aggressiveness, and courage. And he is there in that Mooladhara chakra with his entire family. The family consists of his two wives, Riddhi and Siddhi, two sons, Shubh and Labha, and two grandsons, Anand and Mangal. When these are in our root chakra, in our base chakra, in our foundation chakra, what they give? They give us the blessings. Oh, you prosper in your life. You have the spiritual world, you have the worldly benefits and everything in your life. 100% life with worldly benefits and 100% life with spiritual wisdom. That is the insight Lord Ganesha gives us. When we embark on the spiritual journey, we need a guru. A guru who can be your guide, who can be your mentor, who can be your GPS system, because you are venturing into an unknown venture of your life, an unseen venture of your life where darkness is there. You need insight, a guru, a vision of a guru, a vision of Lord Ganesha. Have you seen Lord Ganesha's face? It's an elephant-headed god. और उनकी जो आंखें हैं एकदम छोटी है। ये हमें क्या सिखा रही है, क्या बता रही है? फोकस करो अपने लक्ष्य पर। Keep your eye, your bull's eye on the target which you want to hit. तो गुरु के सानिध्य में रहते हुए हम गुरु की
आज्ञा अनुसार अपनी साधना को बढ़ाते रहें, तो भगवान गणपति आपके मूलाधार चक्र में स्थित होकर आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल देंगे। अब जीवन की दशा और दिशा क्या है? दशा यानी जो आपका हॉरोस्कोप का दशा है वो बदल जाएगा। दिशा जो आप देखते हो वो आपकी दिशा बदल जाएगी। जैसे ही आप जो देख रहे हो, आपकी सृष्टि आप बना रहे हो, जो आंखों से दिखता है वही आपकी सृष्टि है, वो आप बना रहे हो। और जैसे ही आपने अपनी सृष्टि को बदला, आपकी सृष्टि बदलते ही आपकी दृष्टि बदल जाएगी, आपकी दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाएगी। दोनों वाइस वर्सा है। पर जैसे ही दृष्टि बदली, आपकी सृष्टि बदली, दिशा और दशा दोनों बदलने लग जाएगी। ऑफ कोर्स मेहनत करना ही होगा, समर्पण करना ही होगा। तो ये नहीं है कि गणपति या भगवान आपको सिर्फ वर्ल्डली बेनिफिट्स देंगे। आपका जो भाव है, आपकी भाव की शुद्धता चाहिए, आपके मन का समर्पण चाहिए, मस्तक का समर्पण चाहिए, और ये विश्वास चाहिए कि गणपति कैसे आशीर्वाद दे रहा है। अपने आप से आशीर्वाद देगा? नहीं। वो कैसे आशीर्वाद देगा? अपनी पत्नी के द्वारा आपकी बुद्धि में आकर आशीर्वाद देगा। वो हमें क्या सिखा रहे हैं कि अपनी पत्नी को हमेशा लक्ष्मी का रूप मान के चलो, तो मैं तुम्हें विजडम भी दूंगा और लक्ष्मी भी दूंगा। लक्ष्मी जैसे आएगी, रिद्धि आएगी, तो सिद्धि तो आना ही है। अब रिद्धि आ गई यानी लक्ष्मी आ गई, तो उसका दूसरा परिणाम उनकी जो बहन है सिद्धि। तो आपको सिद्धि का मतलब ये नहीं है कि आप कोई मंत्र सिद्ध कर रहे हो। सिद्धि का मतलब आप सिंपल वे में ये समझो कि आत्म संतोष आ जाए। एक है कि मेरे जीवन में अभाव ही अभाव है, और एक है मैं अभाव में भी भाव में हूं और मस्त हूं। दोनों में बहुत गहरा चिंतन वाला अर्थ है, तो समझो। जितना आप समझोगे उतना उसको जीने में मजा आएगा। भाव में अभाव या अभाव में भाव, चुनना आपको है। तब गणपति भी आशीर्वाद देगा। आप जो चाहते हो वर्ल्डली बेनिफिट्स तो बहुत मामूली बात है, वो आपको मोक्ष दे देगा, वो आपको एनलाइटन दे देगा। उससे बड़ी चीज क्या चाहिए आपको जीवन में? Or things that people don't generally know about Ganesh ji, but it be interesting, important for them to know. If you have any ideas that people don't generally know about Ganpati ji, but they're very nice and important. तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द प्रेम। वो प्रेम जो भगवान गणपति आपको दे रहे हैं, वो श्रद्धा, वो जीवन में मर्यादा, वो हम सबको अपने अंदर उतारनी है। वो जो लक्ष्य को साधने कैसे साधा जाता है, आंखें छोटी है लेकिन उनका सारा ध्यान उस लक्ष्य पर ही केंद्रित है। उनके कान बड़े हैं तो दूर की ध्वनि भी वो सुन लेते हैं, और वो ये समझ लेते हैं कि कौन सी चीज मेरे लिए अच्छी है और कौन सी मेरे लिए अच्छी नहीं है। तो हमारे कान को भी हमें वैसे ही करना होगा। हमारी दृष्टि को सदैव हमको उस दिशा पे रखनी होगी जो हमारे लिए केंद्रित है, और हमारे लिए हमेशा एक सही राह, एक सनातन हिंदू को जिस राह पे चलना है उसी ओर लेकर जाएगी, प्रेरित करेगी। उस ऐसे हमको अपने ध्यान में रखना होगा। ये सारी चीजें गणपति हमें सिखा रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो उस नियम को लागू करते हुए हमें परिवर्तन करते हुए चीजों को आगे बढ़ाना है। तो इसमें भगवान गणेश बहुत बड़े मददगार हो सकते हैं। उनका लक्ष्य देखने का विधि, उनको उनके ध्वनि सुनने की विधि, उनका जो भोजन ग्रहण करने का, और उनका जो जीवन, अब इतने भारी शरीर वाले, और उनकी सवारी क्या है? चूहा। चूहा क्या करता है? चूहे का गुण क्या है? हर चीज को काट देता है ना। तो हमारी बुद्धि जो चूहे की तरह दौड़ती रहेगी, इधर से उधर काटती रहेगी, उसको कंट्रोल करने के लिए गणपति ने उनको अपनी सवारी बना दिया। तो सारा सिंबॉलिक है। तो अपनी बुद्धि को कंट्रोल करना है तो आपके मूलाधार चक्र में भगवान गणपति को जागृत करो, और लक्ष्य
साधना का रखो, जो गुरु का निर्देश है उसको पालन करते हुए आगे बढ़ो, तो आपके जीवन में शुभता ही शुभता, भगवान गणपति आपको सब कुछ सिखा देंगे। One thing I wanted to ask before I forget is that for before we do anything, even before we pray to any god, first Ganapati is prayed to. So Yeah, yeah. give us a little bit of idea of why and how that helps. Again, it connects to our root chakra. अब इसको ऐसे समझिए, जैसे रूट चक्र आपका पहला चक्र हो गया 7 चक्रा में, तो आपका फाउंडेशन हो गया। और जब आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझिए, आज के लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं, आप बिल्डिंग बना रहे हो, तो कंस्ट्रक्टिंग ए बिल्डिंग, व्हाट यू डू, to first dig up the plot and square it and put up the foundation. फाउंडेशन डालने के बाद ही आप बिल्डिंग को खड़ा करोगे, चाहे 10 माला करो चाहे 100 माला करो, बिल्डिंग तब खड़ी होगी। जितना फाउंडेशन आपका अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, आपका बिल्डिंग उतना अच्छा रहेगा। तो भगवान गणपति, ये समझ लीजिए कि आपका हर चीज का फाउंडेशन है, इसलिए प्रथम पूज्य बना दिया गया, गणों के अध्यक्ष है। ऐसा नहीं है कि वो शिव के पुत्र है तो उनको प्रथम पूज्य बना दिया गया। तो नॉर्मल कहानी तो हम सब जानते ही हैं, शिव और कार्तिक स्वामी का जो परिक्रमा विश्व की करे थे, तो वहां पर गणपति ने क्या किया, गणपति ने माता पिता को ही सब कुछ माना। ये हमें क्या संदेश दे रहे हैं कि आपके जीवन में आपके माता पिता का आशीर्वाद इतना काम करता। उन्होंने अपने जीवन में उदाहरण दिया कि माता पिता से बढ़ के जीवन में कुछ नहीं है, सबसे पहले माँ है, उसके बाद पिता है। तो उन्होंने 3 बार माता पिता की ही परिक्रमा कर ली और सारे विश्व का भ्रमण कर लिया, तो अपनी बुद्धि की चतुरता दिखाई, लीडरशिप क्वालिटी दिखाई, एक लीडर कैसा होना चाहिए वो बताया, और उसी का उनको पारितोषिक ये मिला कि उनको प्रथम पूज्य मानकर सबने एक्सेप्ट किया। तब से ये चलन आ गया कि हम भगवान गणपति को प्रथम पूज्य मानकर एक्सेप्ट करते हैं। अब प्रथम पूज्य का मतलब ये भी है कि आप जीवन में अपने फाउंडेशन को अच्छा रख के चलो, आपकी बिल्डिंग बड़ी आगे तक खड़ी होगी, 100 बरस का आपका बिल्डिंग बनेगा, चलेगा। और आपका लक्ष्य निष्कंटक और निस्वार्थ होना चाहिए। तो आपके जीवन के अंदर की जो खूबसूरती है, जीवन की जो खूबसूरती है, तो सनातन धर्म की खूबसूरती है, आप उसको समझ पाओगे। और फिर आदि नारायण स्वयंभू है, एक रूप में आदि नारायण भी है और बुद्धि के देवता भी है। तो हमारी बुद्धि सही चले, इसलिए पहले आप पूजा गणपति की करो ताकि आपकी बुद्धि में निर्माल्यता रहे, निर्मल रहे। निर्मल भाव से, निर्मल मन से ही आप प्रभु को पा सकोगे, इसलिए प्रथम पूज्य गणपति को माना जाए। In essence, you completely Yeah. surrender to him. You go to him with humility and you say, just whatever ego I have, if I am not able to remove, you remove it for me. And I am at your feet humbly. And I request that whatever I'm doing from now, whatever puja I'm doing after this, you make sure my buddhi is correct. And I am applying it properly. And basically thanking him for, helping you get through everything. Attitude of gratitude. Gratitude. Always be in attitude of gratitude. When we born, we have been given birth with certain things in our life, we have to do it. ये एक कर्ज है जो हमको प्रकृति ने दिया है, उसको हमको चुकाना ही होगा। तो हम पृथ्वी पर आए हैं तो कुछ ऐसा करके चलें कि हमारा पृथ्वी पर आना और जाना सार्थक हो जाए, जीवंत हो जाए। अगर हम किसी की दुख भरी जीवन में चंद लम्हे खुशियों के दें, उससे अच्छी बात और क्या होगी? इससे अच्छी गणपति की कृपा किसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी? तो जीवन में सदैव आनंद बना रहे, इस यात्रा में अनंत आनंद के साथ ही चलते रहें, गुरु का मार्ग दर्शन में चलते रहें,
be happy, be healthy, keep smiling, and make it mandatory in your life that you are doing dhyan daily. Make it a habit to be in dhyan on daily basis. Let us work in tandem with nature, as all my gurus have given me this insight. Let us work with Prakriti and become from finite to infinite. इस अनंत आनंद की यात्रा में आपका स्वागत है। आइए चलिए मिलते हैं और जीवन की खूबसूरती को सनातन मंत्र दीक्षा के साथ जीते हैं। Thank you, Guruji. Thank you so much.